ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی. جتنی بھی جاندار چیزیں آپ کو ملیں گی وہ کوئی بھی جاندار چیز بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. آپ یہ سوچتے ہوں گے اور بہت ساروں کے سوالات میں نے سنے بھی ہیں. جیسے کل جمعہ کے بعد بات چل رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں پانی کی قلت ہے، آسام میں تو باڑھ آ گیا، سمندر کا اتنا پانی موجود ہے، تو پانی کی قلت سے کیا مراد ہے؟ تو اسے سمجھ لیں کہ سمندر کا جتنا بھی پانی ہے اس پانی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پانی خاری ہے، نمکین ہے، اور پانی کی مقدار دنیا کے اندر زمین کے اوپر اگر دیکھا جائے تو more than 67 to 70% آپ اگر دیکھیں گے تو زمین پر پانی ملے گا، اور خشکی اگر آپ دیکھیں زمین اور خشکی کا اگر معاملہ دیکھیں تو وہ 30% ہے کم و بیش، باقی پانی ہی پانی ہے. لیکن وہ پانی کون سا ہے؟ تو نمکین پانی ہے، خاری پانی ہے. بلکہ بعض محققین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو سمندر کے پانی میں خارا پن ہے اور نمک ہے، اگر اس نمک کو نکال لیا جائے تو 40 مالوں کی کئی بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں تب بھی وہاں کا نمک جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اتنا نمک ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ اسی نمکین پانی سے میرا مولا میٹھا پانی بناتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے. اور کس طرح سے بناتا ہے اسے بھی آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیں. میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں یہاں بھی رب نے دکھایا، افرائیتم الماء الذی تشربون، تو بھلا بتاؤ تو وہ جو پانی تم پیتے ہو، بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہمیں اتارنے والے؟ اللہ بندوں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو دیکھو اس پانی کو. اسی لیے آپ یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھو. پانی میں دیکھنا یہ حضور کی سنت ہے کہ دیکھ کر کے پانی پیو. تو رب فرماتا ہے یہ جو تم پانی پیتے ہو ذرا دیکھو اسے، اس پینے والے پانی کو دیکھو کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. یہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی یہ کون نازل کر رہا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو. کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اللہ چیلنج کر رہا ہے، اللہ بندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اتنا پانی تم پی رہے ہو تو کیا یہ تمہارے کسب سے تمہیں پانی ملا ہے یا تمہاری محنت سے یہ آسمان سے پانی اتر رہا ہے؟ نہیں، یہ کون ہے پانی اتارنے والا؟ اور پھر میرے مولا نے اپنے بندوں کو اس نعمت کی قدر کے حوالے سے فرمایا، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر اس پانی کو بھی ہم کھاری کر دیتے تو، اسے بھی نمکین کر دیتے تو، فلولا تشکرون، پھر کیوں شکر نہیں کرتے تم؟ اب یہاں آپ سمجھیں کہ یہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے یہ نازل کرنے والی ذات خدا کی ہے، نازل کرنے والی ذات خدا کی ہے. لیکن یہ آسمان پر جو بادل بنتے ہیں وہ بنتے کیسے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب چاند کی شعائیں، چاند کی کرنیں سمندر پر پڑتی ہیں تو یہ ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ جو آپ کو سمندر میں نظر آتا ہے نا، سمندر کبھی آپ کو ایک دم ٹھہرا ہوا نہیں ملے گا،
समंदर पर जब किरणें पड़ती हैं तो कभी लो टाइड होता है, कभी हाई टाइड होता है, मौजें आती हैं। तो जब समंदर में मौजें आती हैं, तो जब ये मौजें उठती हैं तो परवरदिगार जल्ल जलालू उन मौजों की झाग को ऊपर की तरफ हवा के जरिए उठा लेता है, और जब ये झाग हवा की तरफ उठती है हवा के जरिए, तो परवरदिगार उसी को बादल बना देता है, और फिर ये बादल बन करके मेरा मौला जहां चाहता है फिर वो बरसते हैं, फिर वो बरसते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, समंदर के नमकीन पानी की मौजों को हवा के जरिए ऊपर उठाकर बादल बनाकर उस नमकीन पानी को कहां से फिल्टर किया जाता है, कहां से उसे साफ किया जाता है, उसका खारीपन कौन दूर करता है? आसमान पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, आसमान पर कोई फिल्टर का जो है वहां पर कोई दूसरी चीजें नहीं। ये कौन है जो खारी पानी को मीठे पानी में तब्दील करता है? ये मेरे रब की जात है, ये मेरे महबूद की जात है। और ये भी याद रखो, आप नीचे से देखते होंगे तो बादल नजर आते हैं। ये बादल क्या होते हैं जानते हैं आप? ये इसमें पानी भरा हुआ होता है, ये टनों मनों के बादल होते हैं। और इसीलिए आप सुने होंगे अभी गुज़िश्ता चंद सालों पहले कि कहीं बादल गिरा, तो आप जानते हैं अगर ये बादल कहीं गिर जाए ना तो बस्ती की बस्ती तबाह हो जाए। ये इतना ताकतवर होता है, उसमें इतना पानी होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई टैंक नहीं। ये मेरे मौला का करम है, उसकी शान है, उसकी कुदरत है कि उसी को परवरदिगार टैंक बना देता है, और टनों मनों के साथ वो आसमान पर बादल मेरा मौला जहां चाहता है बादल चला जाता है, और जहां चाहता है मेरा मौला वहां पर वो बादल बरसने लग जाता है। और ये भी याद रखें, बारिश के पानी से ज्यादा मिनरल वाटर कोई दूसरा है ही नहीं। बड़ा बरकत वाला ये पानी है। और खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस पानी के हवाले से फरमाया, वअंज़लना मिनस समाई माअम मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी नाजिल फरमाया। ये पानी बरकत वाला पानी है, ये बरकत वाला पानी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि उसने ये पीने के पानी के लिए हमारे लिए बंदोबस्त फरमा दिया, एहतमाम फरमा दिया, और ये मीठा पानी हमें अता फरमाता है। और ये उसका करम है, उसका एहसान अजीम है। अब और एक चीज आपको समझनी है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू कहीं कम कहीं ज्यादा बारिश नाजिल फरमाता है। अगर दुनिया का कोई इंसान चाहे कि इतनी बारिश यहां पर हो, अभी चंद दिनों पहले मुंबई के हवाले से ये बताया गया था कि 2 दिन बिल्कुल अलर्ट रहें, मूसलाधार बारिश होगी, कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया ने अपने हिसाब से सब कुछ बता दिया लेकिन नहीं हुआ। और इंसान चाहे कि फलां जगह इतनी बारिश हो, नहीं हो सकती। इतनी बारिश फलां जगह हो, नहीं हो सकती। क्यों? यह बात याद रखना, जितनी भी अहम चीजें इंसानों की जरूरत की हैं, अल्लाह ने उस पर किसी को इख्तियार दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। वो अपने कब्जे में ही रखा उसने, वो अपने कब्जे में ही रखा। रिस्क अपने कब्जे में, जिंदगी अपने कब्जे में, इज्जत अपने कब्जे में, मौत अपने कब्जे में, ये पानी बरसाना अपने कब्जे में, हवा अपने कंट्रोल में, ये सब कुछ परवरदिगार ने अपने कब्जे कुदरत के अंदर रखा। यूं तो परवरदिगार जल्ल जलालहू के दस्ते कुदरत ही में सब कुछ है, लेकिन ये अहम अहम चीजें परवरदिगार ने किसी को नहीं दी, अपने कंट्रोल में रखा। इस पर किसी का इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार नहीं। अरबों रुपए खर्च करने के बाद अगर कोई चाहे
کہ मैं अपनी पूरी सल्तनत दे दूं और बारिश यहां पर बरस जाए। मौला नहीं चाहेगा तो बारिश नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो अब आप देखें, कुदरत अपनी ताकत को दिखा रहा है और बंदों के हवाले से चाहता है कि बंदे उसकी ताकत के सामने सरेंडर हो जाएं, सर्व सुजूद हो जाएं। तो मेरा मौला सूरह मोमिनून में फरमाता है, और बड़ी प्यारी ये आयत करीमा है और इसे समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअंज़लना मिनस समाई माअम बिक़दर, और हमने आसमान से पानी उतारा एक अंदाजे पर, एक अंदाजे पर हमने उतारा। फास्कन्नाहु फिल अर्द, और उसे जमीन पर ठहराया। वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, और बेशक हम उसके ले जाने पर कादिर हैं। आप याद रखें, ये जो तालाब बने हुए होते हैं, नशेब वाला इलाका होता है, ये परवरदिगार जल्ल जलालहू ने पानी के ठहराने के लिए ये सारा इंतजाम कर रखा है। इसलिए कि एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बात आपकी समझ में आ जाएगी। बारिश के कितने महीने होते हैं? जवाब दीजिए आप। और जरूरत पानी की कितने महीने होती है? बोलिए। तो 4 महीने बारिश होगी, 8 महीने बारिश नहीं होगी, तो आप पानी की जरूरत पूरी कैसे करेंगे? तो मेरा मौला फरमाता है, फास्कन्नाहु फिल अर्द, हमने पानी के ठहराव का इंतजाम तुम्हारे लिए जमीन पर कर दिया है। 4 महीने बरसाएंगे, 8 महीने तक तुम्हारे पास स्टॉक रहेगा, और फिर उस 8 महीने तुम उस पानी से फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। ये कुरान का निजाम है, कुदरत का निजाम है। और फिर अल्लाह फरमाता है, वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, हम उसके ले जाने पर कादिर हैं। अब इसको भी समझो आप, ले जाने पर कादिर हैं से मुराद ये है कि कहीं डैम के अंदर आपने पानी सेव कर लिया, कहीं तालाब के अंदर पानी सेव है, लेकिन मौला चाहे तो पलक के झपकते सारा पानी जमीन के अंदर भेज दे, सुखा दे वो डैम को, वो ले जाने पर कादिर है। इसीलिए आप देखें कि बाज इलाकों में 200-200 फीट बोरिंग करने के बाद भी पानी नहीं निकलता, नहीं निकलता है पानी, और कहीं चंद फीट पर पानी निकल आता है। तो ये कौन है जो पानी को ले जाता है? तो मेरा मौला फरमाता है, मैं कादिर हूं, मैं चाहूं तो पानी को ले जाऊं, मैं इस पर कादिर हूं। अब चूंकि मुल्क इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहा है, और आप शायद इसको महसूस न करते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पानी के सिलसिले में एक कोहराम बपा है। और ये बात याद रखें कि तहकीक के बाद ये पता चला है कि सन 2030 तक हिंदुस्तान के अंदर 40% मुश्किल से पीने का साफ पानी मयस्सर हो सकता है। डैम सूख रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं, बारिश की किल्लत हो रही है, ये सारी चीजें हो रही। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो मौला रहमानो रहीम है, अपने बंदों की जिंदगी पर उसे बेपनाह प्यार है, उसकी जरूरत के सारे सामान उसकी पैदाइश से पहले, यानी बंदे की पैदाइश से पहले मौला ने तख्लीक फरमा दी, आखिर वो बारिश को रोक क्यों देता है? कोई तो चीज होगी। अब उसे समझें, ताकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बारिश के रुकने के असबाब को सुनने के बाद वो लोग भी कान खोल करके सुन लें जो किसी एतबार से बारिश के सिलसिले में कहते हैं कि ये करें तो बारिश, ये करें तो बारिश, ये करें तो बारिश, और जो है नमकीन पानी को जो है वो फिल्टर करके जो है पीने के लायक बनाएं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर लो, लेकिन इतना पानी बना ही नहीं सकते जो इंसान की जरूरत को पूरा कर सके।